This is another good problem for those who are preparing for IIT Advance. It has concepts that needs to be thought of. This question with you here. The question is like A is a set of value x, where x is the real number obtained from this quadratic equation. Another set is B. So this is also a set of in x is all real numbers and those real numbers obtained from your another quadratic equation. So these two quadratic equations are containing m unknown in it. So now the question says how many values of m are there for which A and B will exactly having three distinct elements, means three distinct solution. तीन सॉल्यूशन मिले और तीनों अलग अलग हो. पहले मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं. जो दोनों सेट के अंदर है वो इक्वेशन को लिख दी जाए. ओके, ये वाला इक्वेशन में डाल रहा हूं ए से, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एम माइनस वन एक्स माइनस टू एम प्लस वन इक्वल टू 0 और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1. So let us assume that it's an equation number 1. Now we'll go for the second equation from B. That one is x square m minus 1 plus mx plus 1 equal to 0. This is equation number 2. So first of all, to know whether these equations have its real roots or not. So how do we check that? We check the discriminant, right? So we will say discriminant for number 1 equation d1 is b square minus 4 a is 1 c is minus 2 m plus 1. So this is coming equal to if you solve it you will get it m plus 3 ka whole square. Now next is we will get the discriminant of number 2 equation. चलिए नंबर 2 इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिख दी जाए b स्क्वायर माइनस 4ac a is m minus 1 c is 1. तो इससे जो मुझे मिल रहा है वो दैट इज m minus 2 का होल स्क्वायर. तो डिस्क्रिमिनेंट नंबर 2 मुझे ये मिल गया. तो यहां से आपको ये तो क्लियर दिख रहा है कि दिस इज d1 and d2 since it's a square of a number for any real values of m. So therefore it is definitely a positive number. So if it is positive, it means equation number 1 will have two solutions and equation number 2 will have two solutions. Total 4 solutions. So if we try to get the solutions from here, from equation 1 directly and from 2, so what you can see that your
x will come as a function of m. So for the understanding of concept, x from equation number 1, if you get as a function of m1 and then gm. So these are two solutions from equation 1. Now, from equation 2, you got another two solutions as function of m. So total 1, 2, 3, 4 solutions. But we do not know how many of these are same. So out of these 4 solutions, we are to make 3 distinct solutions. So that conditions we are to find, right? तो इसका मतलब है कि जब मैं अगर मुझे 3 सॉल्यूशन बनाना है तो पहला केस मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है एफएम हमारा एचएम के बराबर हो, तो एम की कुछ वैल्यू यहाँ से मिलेगी। फिर दूसरा एफएम एफएम आपका जेएम के इक्वल हो सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज में ये, तो यहाँ से कुछ एम का नंबर मिला। सेकंड पॉसिबिलिटीज में ये, तो यहाँ से एम का नंबर मिला, है ना, एम एम का कुछ वैल्यू मिला। तीसरा यहाँ से भी कुछ m की वैल्यूज मिलेगी। इसको हम लोग इंटेंशनली इक्वल कर रहे हैं सो दैट इस फंक्शंस के लिए, इस टू फंक्शंस के लिए दोनों का वैल्यू सेम आ जाए और बाकी दोनों अलग अलग रहे, तो टोटल आपका 3 सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन कितने m के वैल्यू के लिए, कितने कंडीशंस के लिए आना है, इसलिए हर के साथ मैं इक्वल करके निकाल रहा हूँ। अब आपका क्या हो गया, अब gm बच गया, gm is कैन बी इक्वल टू hm। इससे भी m की वैल्यू कुछ मिलेगी। इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसको आपको क्वेश्चन देखने के साथ पता होना चाहिए कि मैं ये अप्रोच लगाऊंगा। ओके, एंड दूसरा आपका क्या हो गया, gm कैन बी इक्वल टू jm तो इस 5 वे में हम लोग जो फंक्शंस के फॉर्म में रूट हमें मिल रहा है उसको इक्वेट करके वी कैन मेक 3 काइंड ऑफ सॉल्यूशन, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। और ये m के अलग अलग वैल्यू जो मिलेगा उन सबको कलेक्ट कर लेंगे और उसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 फॉर हाउ मेनी m 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। तो ये मेरा टारगेट है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, तो इसको हम अब मैं रब आउट कर देता हूँ। सो आई एम रबिंग इट ऑफ। And we go for writing the solution from equation 1। तो इक्वेशन 1 से हमको क्या मिला,
x की वैल्यू लिखे -b प्लस माइनस d1, तो d1 आपका m+3 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आपको x की दो सॉल्यूशन मिल गई, दैट इज 2 एंड -m+1। जब आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये दो सॉल्यूशंस आपको मिल गए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू -b -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d2 m-2 का होल स्क्वायर 2a, a is m-1। इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको x के दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एक हो जाएगा -1 एंड दूसरा हो जाएगा 1/1 -m। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने इसे लिख के रखा हुआ है। तो अभी देखिए आपको चार सॉल्यूशंस मिल गए दो इक्वेशन से। ये 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 इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये 4 सॉल्यूशंस है। अब इससे मुझे 3 सॉल्यूशंस बनाने, 3 अगर बनाने तो क्या करेंगे हम? चलिए ये तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया 2, 1 भी यूनिक हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि -m+1 को एक बार इसके इक्वल कर दूं। तो पहला केस -m+1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? -1 कैंसिल हो जाएगा तो m आपको 0 मिल गया, तो एक m 0 मिल गई। ओके, दूसरा कंडीशन -m+1 इस वाले के इक्वल हो जाए। इसलिए m क्या मिल गया आपको? ±√2। तो ये भी आपको दो सॉल्यूशन मिल गया m का। जब इसको इसके साथ मैंने कर लिया तो अब तीसरा क्या है? इसको इसके साथ कर लिया, इसको इसके साथ कर लिया। अब इसकी बारी, इसको मैं इसके इक्वल कर देता हूँ, या इसको इसके साथ करता हूँ। -m+1 अगर 2 के इक्वल हो तो दैट ऑल्सो इज ए पॉसिबिलिटी। -3 हो गई, ये हो गया, तो इसका इसके साथ हो गया, इसको इसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया। 3 केस मैंने इसके लिए ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास m का ये वाला फंक्शन है, तो इसको मैं
इसके इक्वल करूं और इसको इसके इक्वल करूं, क्योंकि इसके साथ तो इक्वलिटी हमने चेक कर ली है ऑलरेडी। तो m इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब पांचवा केस, इसको इसके इक्वल करूं, m इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये आपको m के इतने सारे वैल्यू मिल गए जिसके लिए इसको मैं हाईलाइट कर दूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एक ये हो गया, तो यहाँ हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, 1 2 3 2 5 1 6 6 ये मिल गया। अब अगर सोचिए m को मैं 1 कर दूं तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नंबर 1 इक्वेशन क्या हो जाएगा, इफ m इज इक्वल टू 1। बिकॉज अभी तक हमने m इज इक्वल टू 1 को कंसिडर नहीं किया है। अगर मैं यहाँ डाल दूं तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर 1 इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर, m माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म जीरो हो जाएगी, एंड दिस विल बी -2 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, तो x विल बी +-2। तो मुझे रियल रूट मिल रहा है। अब दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, जब आप m1 कर देते हैं, तो जब आप m1 कर रहे हैं इसमें रखिए m का वैल्यू 1, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट x हो जाएगा। इफ m इज इक्वल टू 1 फॉर सेकेंड इक्वेशन, यहाँ पे फॉर फर्स्ट इक्वेशन, देख लीजिए, चेक करना है कि मुझे रियल रूट्स मिलता है या नहीं मिलता है। यस, लेट अस सी। तो ये पार्ट 0 हो जाएगी, ये पार्ट x हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी 3 देखिए आपको अलग अलग रूट मिल गए, +2 अलग है, -2 अलग है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, +2 -2, तो एक रूट, दो रूट एंड तीसरा रूट, ऑल थ्री आर डिस्टिंक्ट। तो m इज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है। तो हमारा जो चौथा जो मिल रहा है वो m इज इक्वल टू 1 है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ m हो गए, काउंट कर लीजिए आप। एक यहाँ छोड़ी है क्या, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ कम, -m+1 से आपको m+1, m तो 0 मिला, सही है, -m+1 m1 -m m स्क्वायर। Oh no, sorry. Here by mistake I have written wrong.
ये वन, ये वन है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट, इसको कुछ अलग वे में दिखा देते हैं या इससे दिखा देते हैं। ओके, ये हो गया एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। कितने हो गए? एक दो तीन चार, तो छः, एक सात। 7 is your D, so D will be your answer. कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग थिंग, ओनली थिंग यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। किस वे में अगर इस टाइप के इक्वेशंस होंगे, व्हाट इज द वे आउट, हाउ शुड यू थिंक। तो उसका सिंपल सा तरीका यही है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक m अननोन है, तो x का जो भी रूट मिलेगा वो एक m फॉर्म में जरूर मिलेगा, मीन्स m के फंक्शन में मिलेगा, है ना। तो पहला चीज की रियल रूट्स के लिए मैं डिटर्मिनेंट चेक कर लिया, डिटर्मिनेंट इज फाइन, दैट्स ओके, मींस इट इज पॉजिटिव, मींस these two quadratic equation has the real roots. ओके, वो क्लियर हो गई। फिर दूसरा, जब वो क्लियर हो गया तो मैंने x का वैल्यू लिख दिया, तो x का वैल्यू m के फॉर्म में आएगा। बट हमें दो सॉल्यूशन मिला, पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से भी दो मिला, हमें बनाना इनसे कितना है, तीन डिस्टिंक्ट बनाना है। तो दो तो डिस्टिंक्ट है, राइट। तो हमको तीसरे को, ये जो तीसरा वाला है और ये वाला जो है, इसको मैं इसके इक्वल कर दूं या इसके इक्वल कर दूं या इसके इक्वल कर दूं, तो हमें उसके लिए m का क्या क्या वैल्यू मिलेगा, वही चीज हमने किया, निकाल दिया। तो पांचों का कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमें मिला, m का वैल्यू मिला ये सब चीजें। एक जगह 0 है, प्लस माइनस रूट 2 है, एक -3 है, एक हाफ है, एक 2 है, एक 1 है। द टोटल नंबर ऑफ m जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है, दैट इज 7, so D will be your answer. Thank you, it's a very good question, you should try it your own as well. Thank you.